کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کرے دے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم۔ پہلے تو میں ٹیم عافیہ کو بہت بہت مبارکباد دوں گی جو اتنی جد و جہد کر رہے ہیں عافیہ، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے، اور انہی کی جد و جہد اور جتنے بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے کہ وہ رہائی ہو جائے، ان کے لیے اچھا ہو، ان کے لیے لڑ رہے ہیں یہ لوگ۔ ہمارے پاکستان میں کوئی اتنا نہیں ہے، کچھ آرگنائزر ہیں جو ہمارے یہ کام کر رہے ہیں، تو میں ان سب کو بہت مبارکباد ان لوگوں کو پیش کرتی ہوں کہ آپ لوگ محنت کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی محنت کبھی بھی رائیگاں نہیں جائے گی، اور ہم حق پر ہیں۔ انشاءاللہ عافیہ صدیقی کو ضرور رہائی ملے گی۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور بہت اچھا لگا مجھے یہاں پر آ کر، اور میں اس لیے بھی زیادہ خوش ہوں کہ میں آپ کی ٹیم کا ایک حصہ بن گئی۔ بہت بہت شکریہ۔ یہاں پہ جمع ہوئے، اور ہم آج 5 سال مکمل ہو چکے ہیں ٹیم عافیہ کو، اور ہم اس اسٹرگل میں، ہم اس پورے پروگرام میں ساتھ ہیں، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میرے خیال میں ان کو، ڈاکٹر عافیہ کو، قوم کی بھلائی کے لیے سزا ملی ہے، قوم کی انہوں نے بھلائی سوچی، تو اس کے لیے قوم کو بھی چپ نہیں رہنا چاہیے۔ جو بھی خاموشی اختیار کرے گا میرے خیال میں وہ بھی مجرم ہے، اور سب کو جو ہے ایک ساتھ مل کے اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، تاکہ ہم یہ کیس جو ہے اور یہ معاملہ جو ہے آگے بڑھ سکے، اور یہ سب قوم کے متحد ہونے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے، دستخط مہم کے لیے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو کہ قوم کی ایک بیٹی ہے، اور ظالم اپنا ظلم ڈھانے سے باز نہیں آ رہا۔ پچھلے 21 سال سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی بغیر کسی جرم کے ظالم کی قید میں ہے۔ یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم سب اس میں خوب جد و جہد کر کے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی دلا سکیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ 4 جون ٹیم عافیہ پاکستان کو پوری ایم ایس او کی طرف سے، مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی طرف سے 5 سال پورے ہونے پر سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد کراچی کے اندر ایک بار پھر ایک ایکٹیویٹی دستخط مہم کے نام سے شروع کی ہے۔ اللہ پاک اس مہم کا مقصد جو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عافیہ کی رہائی ممکن ہو سکے۔ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، جن کو میری آواز پہنچ رہی ہے اور جن کو آواز میری نہیں بھی پہنچ رہی، ان تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، جس طرح ہمارے گھر کے اندر ایک ماں، بہن، بیٹی، بیوی ہوتی ہے، اس کے کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں، اسی طرح بالکل بیائی ہی، اگرچہ وہ ہمارے ساتھ خونی تعلق نہیں ہے، لیکن پاکستان کی بیٹی ہونے کی وجہ سے، لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے لیے بہترین سوچ رکھنے والی خاتون ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جس بے دردی کے ساتھ یہاں سے اغوا کیا گیا، اور اس کے بعد بے درد ایسی سزا سنائی گئی جو تاریخ رقم نہیں ملتی، کہ تاریخ کے اندر ایسی نظیر نہیں ملتی جہاں پہ اس طرح کا کوئی سزا سنائی گئی ہو۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کی بھلا چاہتی تھی، پاکستان کے اندر ایسا تعلیمی نظام چاہتی تھی جس سے بڑے سے بڑے لوگ ہوں، درمیانی طبقے کے لوگ ہوں، کم طبقے کے لوگ ہوں، ہر شخص کو فائدہ ہو سکے، اور ہماری قوم مکمل طور پر باشعور ہو سکے، اور جنہوں نے ملک پاکستان کے اندر قبضہ کر رکھا ہے ان کے ٹکر میں آ سکے، اور ان کا مقابلہ کر سکے، ذہن کے طور پر، ذہنیت کے طور پر ان کے خلاف کام کرنے کے لیے جب عافیہ نے سوچا، اور پاکستان کے اندر ایسا نظام لانچ کرنے کا سوچا کہ جس کے اندر صرف اور صرف فائدہ ہی فائدہ تھا قوم کا۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب کبھی ہمارے قوم کے اندر کوئی بھی ایک ایسا فرد نظر آئے جو قوم کے لیے بھلا و بہبود کا کام کر سکے، پتہ نہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے یا ہمارے اوپر عذاب ہے کہ وہ غائب ہوا جاتا ہے۔
जब कभी कोई भी नजर आए एक अच्छा काम करता हुआ नजर आएगा, अपनी सोच, अपना नजरिया, अपना तजर्बा पेश करेगा, होना तो ये चाहिए था कि उसको अप्रिशिएट किया जाता और उसको परवान चढ़ाते और मुल्क का नाम रोशन किया जाता। जबकि हम देखते हैं इसके बिल्कुल बरअक्स नजर आता है। इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हम मुत्तहिद नहीं हैं। यहाँ के जितने लोग मौजूद हैं, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नहीं बल्कि पूरे पार्क के अंदर जो मौजूद हैं, बहुत से लोग आवाज़ सुन रहे हैं लेकिन शामिल नहीं हो रहे। सिर्फ और सिर्फ इस इत्तेहाद की कमी है कि आज हम मुत्तहिद नहीं हैं, आज एक उम्मत नहीं है। यकीनन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो वो दिन दूर नहीं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी आई नहीं, जिस तरह पहले कराची में थी आज भी वो कराची में होती। इसी कराची के शहर की वो बाशिंदा थी जो आज ऐसी जगह में है जिसका सिर्फ हम सोच कर नहीं रह सकते। इतनी जुल्म सह रही हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो कलमा गो थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान का भला चाहती थी, इस कौम का भला चाहती थी और वो कौम उसको भुला बैठी है। मैं पुरजोर गुजारिश करूंगा जो अहबाब यहाँ सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो इस आफिया मुहिम के अंदर, दस्तखत मुहिम के अंदर हिस्सा डालें और यकीनन हर मुसलमान का ये फर्ज है कि वो अपने तौर पे दिया लाजमी जलाए। बहुत से अहबाब ये कहते हुए नजर आते हैं कि एक बंदा हम खड़े हो जाते हैं तो हमसे क्या होगा। ये सिर्फ हमारी गलत सोच है कि कतरा कतरा मिलकर ही दरिया बनता है। ऐसा नहीं है कि मुकम्मल दरिया ही डायरेक्ट उभर आए, ऐसा नहीं होता, बल्कि होता यह है कि कतरा कतरा बन के जब हम थोड़े होंगे फिर जाके थोड़े होंगे, फिर ये थोड़े थोड़े करके कसीर तादाद में जब हम नजर आएंगे तो लोग मजबूर होंगे इस बात पर कि आफिया को रिहाई दी जाए। इसके लिए जरूरी है कि हम मुत्तहिद हों और हम टीम आफिया के शाना बशाना होकर काम करें। MSO ये की यकीन दहानी कराती है, जिस तरह पहले हमेशा हर वक्त जिस मोड़ पे उन्होंने दावत दी, उन्होंने पुकारा, MSO ने हमेशा लब्बैक कहा। आइंदा भी ये यकीन दहानी कराती है कि हमेशा वो अपने शाना बशाना पाएगी और हमेशा अपने साथ खड़ा पाएगी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम हाजरीन महफिल को जो यहाँ मौजूद हैं, टीम के अरकान, पार्क के अरकान, पार्क में मौजूद लोग, सबको मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से बेहद मोहब्बत और बड़ा सलाम। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, आज बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का, थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है ताकि लोगों को पता चल सके कि आज यहाँ जमा होने का क्या मकसद है। और हमारे दरमियान जितने हमारे बड़े यहाँ पर आए जिन्होंने बात की, उन्होंने मकसद तो वाज़े कर दिया और इतना मकसद तो यहाँ नज़र आ ही रहा है कि आफिया सिद्दीकी रिहाई दस्तखत मुहिम, यानी ये इवेंट करने का बेसिकली मकसद ये था कि 5 साल से जो हमारी ट्रेंडिंग टीम है, टीम आफिया की ट्विटर टीम है, जिसमें हम कोशिशें कर रहे हैं कि अपनी बहन की रिहाई के लिए और अपने ट्रेंड्स के जरिए हुक्कामे वाला तक आवाज़ पहुंचाते हैं। और हमारी भरपूर कोशिश होती है कि हुक्कामे वाला तक और वहाँ मौजूद दियारे गैर में जो लोग हैं जिन्होंने हमारी बहन को अगवा किया हुआ है, मैं इसको अगवा कहूँगी, जिन्होंने हमारी बहन को नाहक कैद किया हुआ है। और अभी रिसेंटली आप लोग जिस तरह मेरे पास आ रहे थे जब मैं पैनाफ्लेक्स लगा रही थी और लोगों का ये कहना था कि वो तो अफगानिस्तान के पास है, लेकिन हकीकत यही है कि अभी तक वो टेक्सास की जेल में कैद है, हमारी बहन, हमारी माँ, इस कौम की बेटी। तो आप सबसे गुजारिश है, पार्क में जितने लोग मौजूद हैं, आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप सब आएं और इस आफिया रिहाई दस्तखत मुहिम के हिस्सा बन जाएं और हुक्कामे वाला तक, इदारों तक ये बात पहुंचाने में हमारा साथ दें कि हम बेटी फरोश नहीं है। बेटियां तो रहमत होती है, बेटियों को बेचा नहीं जाता, बेटियों का मुहाफिज बना जाता है, बेटियों की हिफाजत की जाती है और बेटियों को अपनी रहमत के साए में रखा जाता है। तो आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आइए हमारे साथ टीम आफिया के साथ इस आफिया रिहाई दस्तखत मुहिम में साथ दें और दस्तखत करें। और इसी के साथ ही टीम आफिया पाकिस्तान को 5 साल मुकम्मल होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और पाकिस्तान में जितने अरकान मौजूद हैं सबकी कोशिशें लाजवाल है, सबको बेहद मुबारकबाद। और इस शेर के साथ इख्तिताम करूंगी कि कहाँ अर्ज़ो समा का मालिक कि चाहतों की रगे कुरेदे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाजा बनी हुई है। कोई मसीहा इधर भी देखे,
कोई तो चारा गरीब उतरे, उफक का चेहरा लहू में तर है, ज़मीं जनाजा बनी हुई है, ज़मीं जनाजा बनी हुई है। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। खुसूसन आफिया मूवमेंट के रहनुमा अयूब भाई का बेहद शुक्रिया। हमें अल्ताफ शकूर भाई ने भी ज्वाइन करना था, जो कि आज किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। इसी के साथ ही हमें MSO के सलमान इदरीस भाई साहब ने, आपका भी बेहद शुक्रिया। इसी के साथ ही टीम आफिया के तमाम अरकान जो यहाँ बैठे हुए हैं, बेहद शुक्रिया। और पार्क में मौजूद एक एक फर्द का बेहद शुक्रिया। बिलाल भाई आपका भी बहुत शुक्रिया जो आप कवरेज के लिए मौजूद रहे। इसी के साथ ही राइटर जो हमारे दरमियान मौजूद है, जिन्होंने आफिया मूवमेंट के जो हमने कॉम्पिटिशन्स करवाए थे उसमें सेकंड पोजीशन ली थी, मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ शिरकत करी आज। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। आइए और दस्तखत कीजिए और साबित कीजिए कि हम अपनी कौम की बेटी के साथ हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले टीम आफिया को मुबारकबाद दूंगा कि आज उनका 5वां योम तासीस है। 5 साल से कराची के और पूरे पाकिस्तान के नौजवान टीम आफिया के प्लेटफार्म से जिस तरह डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। और सबसे ज़्यादा उम्मीद अफज़ा बात यह है कि नौजवान जुल्म के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो रहे हैं। पाकिस्तान में आप देखें हर तरफ जुल्म नज़र आता है, हर सतह पर जुल्म नज़र आता है। एक जुल्म की मिसाल हमारी बहन डॉक्टर आफिया भी है, जिन्हें बेच दिया गया था 3 बच्चों समेत, और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी रिहाई जल्द से जल्द हो जाए। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी इस वक्त अमेरिका में हैं। उन्होंने 2 मरतबा मुलाकात की है डॉक्टर आफिया से जेल में, और जिस जेल में मुलाकात की है वो अमेरिका की बदनाम तरीन जेलों में से एक जेल है, बल्कि उसे दुनिया की बदनाम तरीन जेलों में से एक जेल कहा जाता है। और ख़ासकर ख़वातीन के लिए वो जेल एक खौफनाक जगह है। तो डॉक्टर आफिया के साथ भी मुसलसल तशद्दुद हो रहा है, और बहुत अफसोस की बात है कि वो हमारी कौम की बेटी है, हमारी उम्मत की बेटी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत को, अपनी उम्मत के लिए वो जिस तरह रोते थे और बख्शिश के लिए वो रात रात भर दुआएं मांगते थे, तो उसको सामने रखा जाए। और फिर अल्लाह के रसूल का ये कौल सामने रखा जाए कि काबे को मुखातिब होकर कहा था कि काबा तेरी बड़ी इज़्ज़त है, लेकिन एक मोमिन की इज़्ज़त तुझसे भी बढ़कर है। तो हमारी एक मोमिन बहन कुफ़ार की क़ैद में है, 21 साल से क़ैद में है। अब मौका है कि हम उसकी रिहाई के लिए कोशिश करें, और फ़ाइनल कोशिशें हो रही हैं, और बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस साल कोई अच्छी खुशखबरी मिले। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पूरे पाकिस्तान की आवाम अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करे और हुक्मरानों को जगाएं, उनकी सोई हुई उनकी गैरत को जगाएं। तो मैं अब ज़्यादा आप लोगों के दरमियान हाइल नहीं होना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बस थोड़ी सी हमें अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करना है। पार्क में जितने लोग बैठे हुए हैं वो आएँ और दस्तखत करें। ये हुक्मरानों के लिए एक तरह से पैगाम होगा कि पाकिस्तान के पूरी अवाम, पाकिस्तान की पूरी कौम डॉक्टर आफिया की वापसी चाहती है। तो मैं सबको दावत देता हूँ कि वह आएँ और इस बैनर पर दस्तखत करें, और हमारे इन नौजवान बच्चे और बच्चियों का हौसला अफजाई करें। बहुत शुक्रिया, और मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि ये नौजवान जिस तरह टाइम निकाल कर डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको अज़्र अज़ीम अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।